be considered as rate. Okay, so beta, if I take concentration of products, then what will happen? Suppose if I take concentration of products here relative to time. Yes, beta, tell me. How should be the curve सर for इंक्रीज concentration? होगा ना, इंक्रीज हाँ, होगा। प्रोडक्ट्स की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगी क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट में देयर विल बी नो प्रोडक्ट, सो बट अल्टीमेटली विद टाइम concentration time graph will be like this for products. Okay, this is the point where reaction will end. Here reaction stopped. Why? Because the curve becomes horizontal to time axis or concentration change is zero now. So जब concentration change zero हो जाए तो that is actually reaction is ended. अच्छा, so now beta, if I take this as point A, this point as point B, and this point as point C, so where the gradient is larger? किस point पे gradient is greater? A sir. A पे. So gradient at A is greater, so as rate. So as rate, right? और C पे rate is less because gradient is less. ठीक है? अच्छा बेटा, point D पे gradient क्या है? What is the gradient at point D? 0 sir. हाँ, point D पे gradient is zero. So when gradient is zero, it means rate is zero. So at D, gradient is zero, which means rate is zero. So rate is zero. Right? तो ये थोड़ा सा रिवीजन हमने की कि gradient and rate equivalent है for concentration time graph. अच्छा बेटा, at this point, at point A, right? At point A, the rate is known as initial rate. Okay? At point A, rate will be considered as initial rate. Initial rate के बाद rate कम होती जाएगी हर रिएक्शन में. स्टार्ट में rate will be greater, but जैसे ही टाइम प्रोसीड होगा तो rate less होती जाएगी, स्लो होती जाएगी और अल्टीमेटली फिर रिएक्शन रुक जाएगा. ओके, और इसी तरह इस कर्व में देखें बेटा, एट पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए. पॉइंट ए पे जो रेट होगी दैट विल बी नोन एज इनिशियल रेट, राइट? पॉइंट ए पे रेट विल बी नोन एज इनिशियल रेट. एनी क्वेश्चन बेटा? एनीवन विद क्वेश्चन? अच्छा, नो क्वेश्चन. ओके, देन बेटा नेक्स्ट थिंग इज हाफ लाइफ, राइट? एनीवन हु वांट टू डिफाइन हाफ लाइफ? What is half life? ये याद रखें कि half life is not necessary to be associated with radioactive reactions. For every reaction you can relate half life. You can use half life for every reaction. Half life is represented with this notation, T1/2. This is half life. And half life of a reaction is or can be, yes, anyone who wants to define or explain what is half life? The amount of the time needed for half of the product, reactants to be used to form the product. Good beta. It is the time in which half of the reactants are reacted. ठीक है? Reactants की concentration half हो जाए from the initial value, so that time is actually half life. So the time taken for reactants to make their concentration one half from original value. Or time in which concentration of reactant becomes half is half life, right? अच्छा, now अब half life आपने concentration time graph से कैसे measure करनी है? You have to show the working, right? So this is time. So अब एक्सटेंड के ऊपर जाते हैं उस डेफिनेशन. जी जी बेटा, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है? Time in which concentration of reactants becomes half. Simple as this. That is half life. ठीक है, मैंने वो स्नैपशॉट ले लिया इसको. चलो, ओके जी. सर कंसंट्रेशन या मास हो सकता है? कंसंट्रेशन, हाँ, मास भी हो सकता है. यस, रिएक्टेंट्स की कोई एक क्वांटिटी जो कि हाफ हो जाए तो मास भी हो सकती है, मोल्स भी हो सकते हैं और कंसंट्रेशन भी हो सकती है. लेकिन चूंकि हम कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाई आई टुक कंसंट्रेशन. ठीक है, ये कंसंट्रेशन है. लेट्स से कंसंट्रेशन इज गिवन इन मोल पर डीएमक्यू. ठीक है. अच्छा बेटा, ये कंसंट्रेशन है 0.10, राइट? और ये कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है.
राइट। अच्छा, अब रफली, चूंकि मैंने इसको मार्क नहीं किया हुआ, अब रफली बस मैं बता रहा हूँ कि आपने एग्जाम में हाफ लाइफ कैसे शो करनी है। तो बताओ कि कॉन्सेंट्रेशन हाफ किस पॉइंट पे होगी। मैं ये रफली ले रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में फिर एग्जैक्टली आप लोगे ब्लॉक्स को, स्क्वायर्स को मेजर करके, तो दिस विल बी हाफ। लेट्स से ये 0.10 है, तो दिस इज 0.05। ऐसा ही होगा बेटा। 0.05 इज द हाफ कॉन्सेंट्रेशन फॉर 0.1। और इसको आप यहाँ ज्वाइन करें और फिर इसको नीचे ज्वाइन करें, ठीक है। तो ये जो टाइम है, दिस इज फर्स्ट हाफ लाइफ। एक्स एक्सिस पे जो टाइम है दैट विल बी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, दिस इज फर्स्ट हाफ लाइफ, राइट। तो यस, एग्जामिनर में आस्क्ड यू टू शो वर्किंग फॉर हाफ लाइफ ऑन ग्राफ, तो फिर ऐसे आपने वर्किंग शो करनी। अच्छा बेटा, हाउ टू मेजर सेकंड हाफ लाइफ, ठीक है बेटा। 0.0 इसमें कोई क्वेश्चन है? 0.1 का हाफ 0.05 है, राइट। तो 0.05 तक जितना टाइम यूज हुआ है दैट इज 1t हाफ, मींस फर्स्ट हाफ लाइफ। उसके बाद सेकंड हाफ लाइफ के लिए 0.05 की हाफ कॉन्सेंट्रेशन लें। तो मैं रफली ले रहा हूं, ठीक है। रफली लेट्स से इट्स हियर, तो इट विल बी 0.025, राइट। एक जीरो इसमें और इंक्रीज कर दें। सो बेटा अब नाउ दिस विल बी, ये वर्किंग करें तो दिस इज सेकंड हाफ लाइफ, ठीक है। अब सेकंड हाफ लाइफ विल बी फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, नॉट फ्रॉम द स्टार्ट। जहां पे ये रेड एरो एंड हो रहा है वहां से आपने टाइम स्टार्ट करना, दैट इज सेकंड हाफ लाइफ, राइट बेटा। So this is how you have to show working on graph on concentration time curve for half life. Any question बेटा? हाफ लाइफ अच्छा तो बेटा कांस्टेंट, जी बेटा, हाफ लाइफ कांस्टेंट होगी। जरूरी नहीं, ये इट डिपेंड्स, ये कर्व टू कर्व वेरी करेगी, राइट। कर्व टू कर्व वेरी करेगी, लेकिन यहाँ इस केस में आपको क्या लग रहा है फर्स्ट टू सेकंड हाफ लाइफ? बराबर यहाँ होगी। हाँ, इस केस में फर्स्ट टू सेकंड हाफ लाइफ सेम है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ में फर्स्ट टू सेकंड हाफ लाइफ सेम हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। ठीक है फर्स्ट सर। और सेकंड हाफ लाइफ सेम हो भी सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। अच्छा, ना बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि if concentration time graph is like this, so what is your conclusion? This is time and this is concentration, and concentration time graph is like this. जी बेटा, तो आप इसमें what will you conclude? रिएक्शन चलता जा रहा है। चलता जा रहा है, यस। और बेटा इसमें कॉन्सेप्चुअल कंक्लूजन क्या है? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट है। आपको कैसे पता चला कि रेट कांस्टेंट है? सर वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट ग्रेडियंट लाइन। अच्छा ठीक है, इस ग्राफ में बेटा ग्रेडियंट क्या है? रेट ग्रेडियंट, लेट्स से इसमें पॉइंट्स ले लेना, दिस इज पॉइंट ए and this is point B and this is point C. So what about gradient at point A, B and C? सेम है सर। सेम होगा, जी सर। ठीक है। स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट सेम होगा, स्टीपनेस हर पॉइंट पे सेम है, ठीक है। सो ग्रेडियंट को हमने क्या डिस्कस किया? ऊपर हमने कंसिडर किया कि कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट इज एक्चुअली रेट, राइट। अच्छा, नाउ ग्रेडियंट इज कांस्टेंट। अच्छा, ग्रेडियंट इज कांस्टेंट का क्या मतलब है कि रेट इज कांस्टेंट, इट मींस रेट इज नॉट चेंजिंग, रेट इज नॉट चेंजिंग। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज हो रही है ना। देखो ये कॉन्सेंट्रेशन पे, फिर ये बी पे देखो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, फिर सी पे देखो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है लेकिन रेट इज नॉट चेंजिंग। तो बेटा आपको क्या बताया था कि अगर रेट चेंज ना हो तो कौन सा रिएक्शन जीरो होगा? हाँ, जीरो शाबाश बेटा। जो बच्चे पिछली क्लासेस में एब्सेंट थे उनके लिए ये कॉन्सेप्ट है कि रेट अगर चेंज ना हो रही हो तो वी विल से दैट दैट रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. Zero order reaction is that reaction in which rate is not changing with change in concentration. Concentration is changing, but rate is not changing. And such reaction is known as zero order reaction in which rate is not changing with change in concentration. ठीक है, तो zero order reaction का concentration time curve will be like this. जी बेटा, any question? तो बेटा अब यहां we need to write the concept, and the concept is, but the concept is that if concentration time graph is a straight line, if concentration time graph
is a straight line, then beta, if concentration time graph is a straight line, then reaction will be zero order, right? Reaction will be zero order reaction. If concentration time graph is a straight line, then reaction will be zero order reaction. This is the concept. ठीक है बेटा? लेकिन अगर concentration time graph एक straight line ना हो, अगर concentration time graph straight line है, फिर तो zero order reaction है, right? अच्छा, अब अगर concentration time graph straight line ना हो, for example, ये देखें, now here or here, I'm taking two graphs. This is time axis, and this is concentration. This is concentration on y-axis and time on x-axis. बेटा, अब concentration time graph अगर straight line ना हो, like in this case, concentration time graph is not a straight line, like in this case. अब बेटा हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑर्डर है? अगर कि concentration time graph straight line है, जैसे कि यहां पे, फिर तो जीरो ऑर्डर है, ठीक है? और अगर concentration time graph straight line ना हो, तो बेटा फिर आपने हाफ लाइफ को कैलकुलेट करना है. अगर concentration time graph straight line नहीं है, then you have to calculate half life. समझ आई? अब बताओ ये लेफ्ट वाले कर्व में हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट होगी? लेफ्ट वाले कर्व पे हाफ लाइफ कैसे यूज करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाफ मिडल में So जहाँ पे हाँ, concentration हाफ ले ले, कॉन्सेंट्रेशन का हाफ ले ले. मैं रफली इसको कर रहा हूं, ठीक है? रफली जस्ट टू गिव यू द आइडिया कि आपने एग्जाम में कैसे वर्किंग करनी है. दिस हाफ लाइफ विल बी नोन एज, ये कौन सी, ये फर्स्ट हाफ लाइफ है बेटा, राइट? वन मीन्स फर्स्ट हाफ लाइफ, और फिर उसके बाद आपने सेकेंड हाफ लाइफ भी लेनी है. दिस इज सेकेंड हाफ लाइफ. वेट बेटा, इस कर्व को जरा मैं एडजस्ट करूं. राइट, ओके. सो बेटा दिस इज द कर्व, और इसमें सेकेंड हाफ लाइफ इज दिस वन. अब बताओ फर्स्ट और सेकेंड हाफ लाइफ सेम है? जी सर. no, so तकरीबन सर. तकरीबन, यस. तो फर्स्ट और सेकेंड हाफ लाइफ या तो इक्वल हो या नियरली इक्वल हो, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो या एग्जैक्टली इक्वल हो. दैट विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट? ये आपको याद रखना है ये कॉन्सेप्ट. अगर कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो, कर्व हो, तो देन कैलकुलेट हाफ लाइफ्स. फर्स्ट और सेकेंड हाफ लाइफ अगर इक्वल हैं या नियरली इक्वल हैं, तो देन इट विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. लेकिन अगर फर्स्ट और सेकेंड हाफ लाइफ वो नियरली इक्वल नहीं है, डिफरेंट है, लाइक ये सेकेंड कर्व को देखो बेटा, इसमें ये हाफ ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन है. दिस विल बी फर्स्ट हाफ लाइफ, दिस इज T1/2, and this is first half life. और बेटा second, so first and second half life they are not equal, right? बहुत ज्यादा difference है. So when first half life is unequal to second half life, तो फिर ये second order reaction है, right बेटा? Any question? Any question बेटा? नो सर. अच्छा, जब concentration time graph straight line हो, फिर the order of reaction is zero. उसकी रीजन ये आप लिखोगे कि रेट इज नॉट चेंजिंग. कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन मींस रेट इज नॉट चेंजिंग. और अगर कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो देन यू हैव टू वर्क विद हाफ लाइफ्स. अगर फर्स्ट और सेकंड हाफ लाइफ सेम है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है. अगर सेम नहीं है, तो दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. ओके, सो कॉन्सेप्ट इज that if concentration time graph is not a straight line, concentration time graph is not a straight line, तो फिर you have to then calculate consecutive half life या first and second half life, consecutive half lives, right? So if first half life is equal or nearly equal to second half life, so that will be first order reaction. और अगर first half life
is not equal to second half life, that is second order reaction. लेकिन हाफ लाइफ आपने तभी देखती हैं जब कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ कर्व हो, जब कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो, राइट? So then you will go for half lives. अच्छा बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यस, यू आर अलाउड टू आस्क. अच्छा बेटा, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं उनके लिए we can only use this expression for first order reaction. Let's say ये concentration time graph है और मैं quickly अगर half lives लूं तो ये first half life है and this one is second half life. तो first और second half life approximately same है, right? This is second half life, approximately they are same. अच्छा बेटा, now which order, what is the order of this reaction? First. फर्स्ट ऑर्डर है, राइट? फर्स्ट ऑर्डर. तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बेटा हम ये एक एक्सप्रेशन यूज करेंगे, ये आपको मेमोराइज करना है, ये डेटा बुकलेट में नहीं होगा, ये आपको याद रखना है. K इक्वल्स 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ. यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ओनली. और इसमें जो K है दैट इज रेट कांस्टेंट. K is rate constant. अब बताओ कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही क्यों यूज कर सकते हो? यू कैन नॉट यूज दिस एक्सप्रेशन फॉर जीरो एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. व्हाई? हाफ लाइफ कांस्टेंट नहीं है सेकंड में. हाँ, सेकेंड में हाफ लाइफ कांस्टेंट नहीं हो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी हाफ लाइफ कांस्टेंट नहीं होती. जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी हाफ लाइफ कांस्टेंट नहीं होती, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में भी हाफ लाइफ कांस्टेंट नहीं होती, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ सेम रहती है. So that is why you can use this expression to calculate K, to calculate rate constant. But you can only use this expression for first order reactions, not for second, not for zero order reaction. ये जो expression है ये आपको याद करना बेटा. इसमें ये 0.693 ये इसकी डेरिवेशन में कांस्टेंट है, तो डेरिवेशन सिलेबस का पार्ट नहीं है, राइट? तो यू हैव टू मेमोराइज दिस एक्सप्रेशन, ठीक है? और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ कांस्टेंट नहीं होती. जस्ट आप देख लीजिए कि इफ दिस इज कंसंट्रेशन. जी बेटा, फॉर्मूला दिखाओ. फॉर्मूला, ओके ओके जी बेटा, ये फॉर्मूला है K इक्वल 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ. तो हाफ लाइफ आप यहाँ ग्राफ से सिलेक्ट कर लोगे और K कैलकुलेट कर लोगे, राइट? ग्राफ से आप सिलेक्ट कर लोगे एंड यू विल कैलकुलेट K. ठीक है बेटा, हो गया सर. अच्छा ओके. तो बेटा ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये टाइम है. सो कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ अगर यूं हो तो कौन सा ऑर्डर है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? जीरो ऑर्डर सर. जीरो ऑर्डर है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है. तो अब इसकी हाफ लाइफ चेक करें. ये है फर्स्ट हाफ लाइफ, राइट? दिस इज फर्स्ट हाफ लाइफ. और फिर सेकेंड हाफ लाइफ चेक करें. So this is second half life. तो once again आप देखें कि first to second half life they are unequal. लेकिन ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, कर्व स्ट्रेट लाइन है, so that is why this is zero order reaction, not equal to second half life. This is zero order. तो इसलिए वो जो फॉर्मूला ऊपर बताया था वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हैं. जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, राइट बेटा? ठीक है. अच्छा, तो ये थे कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ. अच्छा, अब बेटा आप ये एक तरह का फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं या मैथमेटिक्स रिलेटेड. अगर के हो ये कॉन्सेंट्रेशन, राइट, एंड दिस इज टाइम. गौर से सुने बेटा, और ये कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ है, ठीक है? अच्छा, इस कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ पे सपोज दिस इज पॉइंट ए. अच्छा, अगर आपसे एग्जामिनर कहे कि कैलकुलेट रेट एट पॉइंट ए, तो आप क्या करोगे? अगर आपसे कहा जाए कि रेट कैलकुलेट करें एट पॉइंट ए, तो पॉइंट ए पे आप कैसे रेट कैलकुलेट करोगे? सर टेंजेंट ड्रॉ करके. टेंजेंट ड्रॉ करके. अच्छा, टेंजेंट बेटा ऐसी लाइन है जो इस कर्व को सिर्फ पॉइंट ए पे टच करनी चाहिए, राइट?
तो आप पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो टेंजेंट बेटा, अब चूंकि ये बोर्ड नहीं है तो मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, बोर्ड पे तो हम यूज टू होते हैं, इस वक्त मैं ये टैबलेट पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आई हैव टू ड्रॉ अ लाइन जो कि सिर्फ पॉइंट ए को टच करे, बाकी कर। लाइन बना ले, ड्रॉ कर ले शेप्स में से। हाँ ठीक है बेटा, वो भी हो सकता है, लेकिन चलो अब तो ये बन गई है, ठीक है। दिस इज द टेंजेंट। अब इस आइडियली इसको एक ही पॉइंट पर टच होना चाहिए। फिर जब आप बनाओगे एग्जाम में आपसे कहा जाए तो केयरफुली आपने बनाना कि जो टेंजेंट है आपका वो सिर्फ पॉइंट ए को टच करे, ठीक है। और फिर आपको ये पता है ना कि ग्रेडियंट इज एक्चुअली रेट। ग्रेडियंट एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू रेट एट पॉइंट ए। तो ग्रेडियंट आप कैसे लोगे? राइज, ये आपका राइज होगा बेटा, इधर से लेके इधर तक जो वैल्यू है दिस इज राइज, और बेटा इधर से लेके इधर तक जो वैल्यू है दिस इज रन। तो राइज ओवर रन से आप कर लें। तो रेट विल बी इक्वल टू ग्रेडियंट, जो कि इक्वल होगा कॉन्सेंट्रेशन चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम असल में वो रन है और कॉन्सेंट्रेशन चेंज इज एक्चुअली राइज। तो राइज ओवर रन से आप रिलेटिव टू ए रेट कैलकुलेट कर लेंगे, राइट बेटा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है एग्जाम में। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको रेट कैलकुलेट करना हो तो आपके पास स्केल होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए। आप टेंजेंट ड्रॉ करें और राइज ओवर रन ले लें उस पॉइंट की टेंजेंट के अगेंस्ट। फिर आपसे एग्जामिनर ये कह सकता है कि ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे रेट कैलकुलेट करें। तो पॉइंट बी पे कैसे करोगे रेट कैलकुलेट? उसी तरह टेंजेंट लोगे, ठीक है। और बेटा ये टेंजेंट जो आप लोगे इसको कंप्लीट लाइन लिया करो। टेंजेंट ऐसे लो कि जो एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करे और वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करे। अब पॉइंट बी पे टेंजेंट ले लो, ठीक है। पॉइंट बी पे जब आप टेंजेंट लोगे तो उसके बाद यू कैन कैलकुलेट रेट एट पॉइंट बी। ये रेट पॉइंट ए पे होगा, फिर रेट एट पॉइंट बी। उसी तरह राइज ओवर रन से निकाल लो किस पॉइंट पे रेट ज्यादा होगा। ए पे। सर। हाँ, पॉइंट ए पे रेट ज्यादा होगा। आप देखोगे न्यूमेरिकल वैल्यू ए की ज्यादा होगी और पॉइंट बी पे रेट कम होगा, क्योंकि बी पे ग्रेडियंट कम है, स्टीपनेस कम है बी पे। और पॉइंट ए पे स्टीपनेस ज्यादा है, ग्रेडियंट ज्यादा है। ए पे रेट ज्यादा होगा, बी पे रेट कम होगा।